Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to look at the chapter number 23 from Jonathan Clayton book, and which is on the chemoselectivity and protecting group. So these are the two core topics that have been covered in this video. So this is going to be an review of this entire chapter. So I'm going to touch upon all the topics that have been discussed in this particular chapter. Okay, so coming back to the question, what is chemoselectively? What does that mean? Let us suppose if we have a molecule, for example, here the molecule what we have is a ketone group and what we have is an ester group. And if we carried out a reduction reaction, let us suppose using sodium borohydride. Now what this reagent is doing, this will selectively carry out the reduction of the carbonyl in presence of the ester. So whenever there are two functional group and reagent is choosing one of them, such reactions are called chemoselective. It means the reaction is preferably taking place at one of the sides. So this is the definition of chemoselectivity. If you want to remember, you can remember it. Chemoselectivity means that there are two separate functional group and the reagent must choose between them. Okay, so just like this part. So in this chapter, the first thing they are talking about is the reduction of the carbonyl compound. So one of the basic methods that we all know, if to reduce the ketones into the alcohols, is the using sodium borohydride. Now the solvent that we use is either ethanol or methanol. Usually the protic solvents that are usually used, and hydride is delivered onto the carbonyl carbon, and this is how the reduction takes place. So the byproduct that is formed, it is still a reducing agent, so this can also further delivers the hydride. Okay, so it means the one sodium hydride molecule means one equivalent of sodium borohydride can be used to reduce 4 molecules of a carbonyl. That is in theory usually. Okay, but usually what we use in the reaction is either 1 equivalent or 1.1, 1.2. Usually that much we use. Apart from that, this particular reduction can also takes place if we are using like lithium borohydride or magnesium, magnesium salts of it, and we can use other solvents like THF. Okay. And what about if we want to reduce the esters to alcohol? Let us suppose this particular reaction. So this is a very good example of chemoselective reaction. Here what we have is a two functional group, right? And when you use lithium borohydride in ethanol, the reduction of the ester is selectively taking place in this particular case, and acid is remaining as such. Okay, and just to remember it, okay, lithium borohydride in alcoholic cell, it reduces ester selectively over amides and acids. So had there been an amide here as well, it would have remained untouched. Okay, and acid also remains untouched using lithium borohydride. You can also carry out this reduction of the esters using lithium borohydride, but usually using lithium borohydride the reaction is very, very slow. What about the reduction of esters to alcohol? Now to reduce the esters to alcohol, usually what we use is a lithium borohydride. So here what we are going to look at the two mechanisms of reduction of lithium borohydride, reduction of amides and reduction of esters. So we will see what is the difference actually in both the cases. Now in the case of ester, what happens once the hydride is delivered? So this is a tetrahedral intermediate that is formed. Now this tetrahedral intermediate immediately collapses because what we have is this alkoxide group, because in the esters what we have is an alkoxy group. So these alkoxy groups are good leaving group. So as soon as this tetrahedral intermediate collapses, what it does, it leads to the formation of this particular aldehyde, and we know the aldehydes are very, very reactive towards the reduction. And since we are using lithium borohydride reduction, since we are using lithium aluminum hydride, so it's end up reducing this particular aldehyde further into alcohol. So this is the reaction sequence via which it takes place. So what is so different about the amides? What happens in case of the amides? So the first step is exactly same. So as soon as this particular intermediate is formed, such type of amides, they are not good leaving group. They are not good leaving group at all. So what actually happens in this particular case is a lone pair of electrons on nitrogen, they come back. So here this is the first kind of an O minus Li forms. So what happens, there is there's a transfer of since this allane is more like what you can say is kind of a
Lewis acid character. So as a result of which the oxygen, it gives the electron to this aluminum. Okay, as a result of which what you form is this particular tetrahedral intermediate. Now in this particular case, now the lone pair of electron nitrogen, they come here and this entire group leaves. So what it does is basically this tetrahedral intermediate on collapse, as soon as it's collapsed, it results in the formation of the imines, and we know that imines can be easily reduced, right? So the lithium aluminum hydride again reduces this imine into the amine. So that is why whenever you carry out the lithium aluminum hydride reduction of esters, what you get is an alcohol, whereas for the amides, what you get is an imine. And this is the reason via which this particular reaction takes place. Okay, apart from that, if you want to carry out the reduction of amides to amine, you can use the borane as well. That chemistry is also used. Now, what about the reduction of carboxylic acid to alcohols? In fact, one of the most important reagent or method that is generally used is the borane. And we know borane in such is a gas. So it basically exists as a dimer like, B2H6. And usually the solution of borane in various complexing solvents like ether, THF or DMS or dimethyl sulfide, they are used. I mean, if you are, let us suppose, using borane in the laboratory, most of the time you will find it is their solutions is available in various molarity in either ether or THF or dimethyl sulfide. And we know that this boranes, they reduce electron-rich carbonyl fastest. It means the carbonyl which is going to be most electron-rich is going to be reduced the fastest. Now here you must be getting confused that in the case of acid, this carbonyl is not very electron rich, right? Because what we have is an OH group. If we follow this particular criteria, then it should reduce some other functional groups much faster than the acid. But we are going to look at why this is so different. Okay. Now let us first of all talk about why the borane does not reduce acid chlorides and esters. And the reason being, in the case of the acid chloride and esters, what we have is a chloride and OR. Okay, alkoxy group, and these two are here. What chloride is electronegative, and we know oxygen is also electronegative in nature. So what it does, they withdraw the electron density from the carbonyl. As a result of which, what it does, it makes this particular carbonyl in the case of acid chloride and ester very electron deficient. So that is the reason why borane does not reduce acid chloride and esters. So this is a very, very important information for you guys to know, because usually in vivas or in various interviews such questions are asked. ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ जब हम एसिड का रिएक्शन करते हैं बोरेन से, तो होता क्या है? ठीक है, हमको पता है कि एसिड का क्या है कि वाला हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है. तो जब आप बोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जब फर्स्ट चीज़ जो आपकी बनती है इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्राई एसाइल बोरेन. ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन रिएक्शन में से रिलीज हो चुकी है. ठीक है, और फर्दर क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है हमारा फर्दर. दिस काइंड ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस इज एन एसाइल ग्रुप, राइट? दिस इज काइंड ऑफ एन एस्टर. दिस इज फर्दर रिड्यूस्ड इनटू द अल्कोहल. वो हम बताते हैं कैसे होता है. जनरली जैसे कि मैंने बोला कि एस्टर हमारा क्या है कि लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कीटोन से, अगर हम कंपेयर करके देखें. क्योंकि क्या होता है कि कीटोन के केस के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हम देख लें, कीटोन के केस के अंदर एस्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है कार्बोनिल से, जबकि कीटोन्स के केस में वैसा कुछ नहीं होता है. नाउ अब हमारा यहाँ पर ये जो ट्राई एसाइल बोरेन है, उस केस में ऐसा डिफरेंट क्या है, उसके ऐसा क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से ये वाला कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है? उसका रीज़न आपका क्या है कि आपका ये जो बोरेन है, ठीक है, बोरेन के क्या पता है, हमको पता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, राइट? इस एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से अब बोरेन क्या कर रहा है कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको भी क्या कर रहे हैं, इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के ऊपर भी ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, इसकी मतलब दीज आर मोर इन्वॉल्व्ड हेयर रादर देन इट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल. समझ रहे हैं? मतलब इस बोरेन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने पड़ रहे हैं बोरोन के पी ऑर्बिटल्स से. ठीक है, और इस एस्टर पे भी इन्वॉल्व है, मतलब दोनों तरफ उसको अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ रहे हैं. जबकि एस्टर के केस के अंदर क्या होता है कि ऐसा कुछ सच फैक्टर नहीं होता. एस्टर के केस के अंदर हम देख रहे हैं वो मिथॉक्सी है, सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की क्या अगर अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, जबकि
यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि क्योंकि बोरेन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन यहाँ पे भी शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन इस कार्बोनिल्स के साथ भी शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि दिस ट्राई एसाइल बोरेन, ठीक है, दे बिकम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी एस्टर, ठीक है। इसी वजह से ये ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है, और क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आपका क्या होता है, बोरेन का एडिशन होता है इस पे फर्दर, मतलब इस ट्राई एसाइल बोरेन पे, टू गिव यू दी एल्कोहल। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ if we look at yet another example, अब देखिए यहाँ पर what you have is an acid and what you have is an ester. So if we are carrying out the boron reduction, it does carry out the reduction of acid in presence of ester. So this is also a good example of chemoselective reactions. अगर हम यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्रेट डालते हैं तो लिथियम बोरोहाइड्रेट इसका रिडक्शन करता है, एसिड का नहीं करता, तो very interesting chemistry. Similarly, if we have as a carbonyl group and what we have is an acid, so under borane, what it selectively reduces acid in presence of the ketone as well. Okay, and the last example I think has also already been asked in the GATE exam, मेरे ख्याल से last year. So what we have is this particular compound. If we carry out the borane reduction से हमको पता है हमारा एसिड का रिडक्शन होगा टू एल्कोहल, और अगर हम इसमें एसिड डाल दें तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा है, मतलब एल्कोहल एस्टर पे अटैक कर रहा है टू गिव यू दिस पर्टिकुलर इनएंशियोमेरिकली प्योर लैक्टोन। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो आपका एस्टर का रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद एसिड डालेंगे तो इलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा है, तो आपको दोनों के दोनों एनेंटियोमर डिफरेंट मिल रहे हैं सेम मॉलिक्यूल की, अगर आप डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करें। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। So now let's talk about, for example, what we have is this amide. एमाइड के केस के अंदर की अब अगर आप करेंगे कि बोरिन से रिडक्शन करते हैं तो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज एन अमीन। इसका मैकेनिज्म सारा का सारा यहाँ पर है, हम वो देख लेते हैं अभी एक बार, ठीक है। लेट अस सपोज व्हाट वी हैव, दिस इज अ साइक्लिक एमाइड और आपका एस्टर है, हमको पता है अगर इसका भी बोरिन रिडक्शन करेंगे तो एमाइड का हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में भी यही होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, दे कम हियर, सो द ऑक्सीजन व्हाट इट डज, इट्स अटैकिंग द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन, ठीक है, एम्प्टी बोरोन के पी ऑर्बिटल पे अटैक कर रहा है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू आर फॉर्मिंग एट दिस स्टेज। व्हाट इज हैपनिंग, दिस हाइड्राइड इज गेटिंग डिलीवर्ड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, क्योंकि हमारा ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। सो हाइड्राइड हमारा यहाँ पर डिलीवर हो गया टू गिव यू दिस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जैसे कि हमने पहले बोला था, दिस एमीन इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आके ये एमीन लीव नहीं कर सकता, बट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन दे कैन कम हेयर एंड दिस एंटायर ग्रुप कैन लीव, ये आराम से लीव कर सकता है, क्योंकि आपका क्या बन रहा है, इमीन्स, ठीक है, इमीन बन रहा है। और जैसे ही आपका इमीन बन रहा है उसका फर्दर रिडक्शन हो रहा है नॉर्मली, जैसे बोरेन का होता है ना, दिस इज नथिंग बट अ डबल बॉन्ड, राइट। अगर हम देखें एक तरह से डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का बोरेन सिन एडिशन के अंदर ऐड हो रहा है इस वाले हमारे इमीन पे टू गिव यू दिस इंटरमीडिएट विच ऑन क्वेंचिंग गिव्स यू दी एमीन। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एंटायर रिडक्शन टेक्स प्लेस यूजिंग बोरेन, ठीक है। तो बोरेन आपका एसिड का भी रिडक्शन करता है और एमाइड का भी रिडक्शन करता है। एसिड का करता है अल्कोहल में और एमाइड का करता है एमीन में, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट हाउ टू रिड्यूस एस्टर्स और एमाइड टू एल्डिहाइड्स, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका। मोस्टली क्या होता है एक्चुअली जनरली है, जैसे कि हमने देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो आपका कभी भी रिडक्शन करेंगे एस्टर का, कभी भी एल्डिहाइड स्टेज पे रुकता नहीं है, ठीक है, हमेशा आपका एल्कोहल बनता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्रोमिक पीसीसी या फिर पीडीसी यूज़ करके आप उसको एल्डिहाइड कर सकते हैं। सो यूजली इट्स अ 2-स्टेप अप्रोच। लेकिन अगर आप एक स्टेप में ही करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट। अगर आपको एस्टर टू एल्डिहाइड एक स्टेप में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू यूज इज अ डाइबाल विच इज डाइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी आपका क्या है कि एक तरह से ये लुइस एसिड है, तो दिस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ ब्रिज्ड डाइमर, ठीक है। जैसे कि आपका बोरेन का आप रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल, आपका डाइबाल भी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल्स को करता है, ठीक है, जल्दी से काफ़ी। सो आपका इसमें डाइबाल कब क्या कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, अगेन वही बात हो रही है कि क्योंकि एल्युमिनियम डाइबाल के अंदर क्या है कि एल्युमिनियम इज
nothing but it has an empty orbital. So oxygen उसके ऊपर अटैक करके to form this intermediate, and the hydride is getting delivered onto this particular carbonyl, क्योंकि ये वाला carbonyl हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. Now आपका ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है टेट्रा इंटरमीडिएट, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेबल है -70. अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं डाइबाल की तो यूजली ये रिएक्शंस की जाती हैं -78, -80, -70 के आसपास. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होता है अप टू दैट टेम्परेचर, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँ तो आपका क्या होगा कि ये यहाँ पर आएगा और आपका इथॉक्सी ग्रुप लीव कर जाएगा. सो व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग इज द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में. तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर करें, और जब आप इसको लोअर टेम्परेचर पर करके आपको क्वेंच करते हैं, सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड. मतलब ये इधर आया, इसने लीव किया, दे विल गिव यू दी aldehyde. So this is very very important. It's very important to do this particular reaction at lower temperature. What about this lactone? So lactone को डायबॉल की एक प्रॉपर्टी है. लेट अस सपोज लैक्टोन को वो लैक्टोल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. Here what we have is, so this is nothing but this is an kind, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, so this is nothing but this is an equilibrium between the aldehyde and the alcohol. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द लैक्टॉल. सो दीज आर ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम. जब भी हम लैक्टोन का रिडक्शन करते हैं, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहला स्टेप आपको डाइबाल दिखा देते हैं, दूसरे स्टेप में आपको एमीन दिखा देते हैं, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये लैक्टॉल बन रहा है, ठीक है. कभी कभी ये दिखा देते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एल्डिहाइड एंड दी एल्कोहल. और अगर आपको एमीन दिखाएंगे तो एमीन एल्डिहाइड से रिएक्ट करके इमीन बना देगा, ठीक है, या कोई और दूसरा फर्दर रिएक्शन होगा वो एल्डिहाइड पर ही हो रहा होगा. सो जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव इज दिस एमाइड. अगेन लिथियम बोरो एल्युमिनियम हाइड्राइड का हमने देखा है रिडक्शन. ये थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो, it's very very difficult to get aldehyde benzaldehyde from this particular reaction, but in this book since they have mentioned now, if you carry out the reaction for exact this substrate, ठीक है, maybe I don't know functionalize पे work करेगा कि नहीं, but they have said for this particular substrate if you do the lithium aluminum hydride reduction and THF at 0 degree, this intermediate that you get, it is stable at 0 degrees. That's what they say. And when you quench it, what you get is a benzaldehyde. So it must be true. Apart from that, the diebal can reduce cyano into aldehyde. So this is also very very good way to convert cyano into the aldehyde. So this is how this particular reaction takes place. यहाँ आपका मैकेनिज्म है. अगेन साइनो के ऊपर क्या है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम हमको पता है कि इट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अटैक्स एल्यूमिनियम. सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म. हमको पता है कि ये वाला कार्बोनिल क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो दिस हाइड्राइड इज डिलीवर्ड ऑन टू दिस कार्बन टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर इमीन. और जैसे ही आपका इमीन बना ये और आपने उसका वर्कअप किया, व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द एल्डिहाइड. सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट साइनो इनटू एल्डिहाइड यूजिंग डाइबाल. और जो इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट है वो आपका एमोनिया रिलीज हो रहा है और एल्युमिनियम्स के सॉल्ट आपके रिलीज हो रहे हैं. सो दिस इज अ समरी ऑफ, इफ यू लुक एट द समरी ऑफ द कार्बोनिल. अगर आपको याद रखना हो या एक ट्रेंड याद रखना है कि कौन किसको आसानी से रिड्यूस कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है. जैसे अगर आपको इमीन से आपको, ये आपका इमीन है, उससे आपको एमीन में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन यूज ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट ईजिली कन्वर्ट करना. यहाँ पे आपको कलर कोडिंग दिखाया हुआ है कि रिड्यूस स्लोली, नॉट रिड्यूस्ड एट ऑल. मतलब जो आपका लाल है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होता, जो आपका हरा है वो रिड्यूस हो जाता है. अगर आपको एल्डिहाइड टू एल्कोहल करना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से हो जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्रेट से हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से हो जाएगा. सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट से आपका नहीं होगा और ना ही बोरेन से होगा. सो इसी तरह से आप कीटोन का भी बताया हुआ है, एस्टर का भी बताया हुआ है, एमाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बताया हुआ है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ पर बताया भी गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव्स आर दी इमीन. इमीन आप देख लो, कुछ भी आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे आराम से रिड्यूस हो जाता है, जबकि एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. So what do you do is basically you convert either it's this into the acyl chloride and then convert it into the aldehyde. और आपको एमाइड को करना है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था लिथियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से किया उन्होंने 0 डिग्री टू गेट दिस वन. और एस्टर को हमें अगर एल्डिहाइड में रिड्यूस करना है तो वी गो वाया, पहले या तो एल्कोहल करके ऑक्सीडेशन कर दो या फिर हम डाइबाल यूज कर सकते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ समरी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स. So now we are going to talk about
हाउ द हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यूजली हाइड्रोजन अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो हमको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को इज़ द पाथवे और इज़ द कैटलिस्ट कोई ना कोई यूज़ करना पड़ेगा. उस मोड को क्या कहते हैं हम? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक है. हाइड्रोजन हमको पता है इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो कार्बोनिल को कर दे. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट न्यूक्लियोफिलिक इनफ, बट इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अगर आपको वीक बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि व्हाट यू नीड इज अ मेटल, यूजली अ कैटलिस्ट, अ मेटल कैटलिस्ट दैट इज रिक्वायर्ड. जैसे कि आपका ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें आपका ओलिफिन एंड एल्डिहाइड, अगर आपको H2PDC से करेंगे तो आपको ओलिफिन का रिडक्शन हो जाएगा. इट डजंट टच दी एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड को टच करके रिड्यूस नहीं करेगा उसको. ठीक है. मोड ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है कि सो व्हाट यू हैव इज अ मेटल कैटलिस्ट. ठीक है, जब आप मेटलिस्ट कैटलिस्ट पे आपको रिएक्शन हाइड्रोजन पे कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है मेटल सरफेस के ऊपर. ठीक है, इसका एड्जॉर्प्शन होता है मेटल सरफेस पे. अब जैसे ही इसका मेटल सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होता है तो क्या करता है कि आपका ओलिफिन आपने जो डाला है वो इंटरैक्ट करता है मेटल सरफेस के साथ, और जब वो मेटल सरफेस से इंटरैक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो डिलीवर्ड होते हैं दोनों के दोनों इस ओलिफिन पे सेम फेस पे, दे आर एडेड ऑन टू दिस ओलिफिन इन अ सिस मैनर. ठीक है, जब आपका पहला जैसे कि ऐड हो गया, उसके बाद आपका क्या दूसरा ऐड हुआ. सो व्हाट यू गेट इज अ मेटल सरफेस एंड व्हाट यू गेट इज अ सिंपल रिडक्शन प्रोसेस. यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर सच मेथड्स आर यूजुअली प्रेफर्ड आपको. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आप आराम से आप रिएक्शन में से बहुत आपको कम कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, और आप हील्ड रिएक्शन की बहुत ज़्यादा होती है. रिएक्शन का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, इसलिए यूजुअली ये प्रेफर होता है. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि पैलेडियम और चारकोल यूजुअली बनाया कैसे जाता है. अगर आपने जो भी रिसर्च में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि यूजुअली पैलेडियम इज अवेलेबल एज 5 to 10% पैलेडियम ऑन 90 to 90% चारकोल. मतलब एक ब्लैक कलर का आपका सॉलिड आता है जिसके अंदर जो एक्चुअल पैलेडियम वो केवल 5 से 10% है, जो कि कार्बन के ऊपर एब्जॉर्ब किया हुआ है. ठीक है, उसको बनाने का तरीका क्या है ये मैं आप इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि अंडर हाइड्रोजनेशन कंडीशन जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जैसे OTMS वो क्लीव्ड हो जाते हैं. ठीक है, या क्योंकि आपका जो ये पैलेडियम ऑन कार्बन है दिस इज वेरी स्लाइटली एसिडिक. So this is a very very important information for those guys who are doing their research, because sometimes you have those groups which are not very stable under acidic condition, they might be cleaved under hydrogenation. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि ये बनता कैसे है और एसिड आता कहाँ से है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मेड, क्या करते हैं आप, बाय सस्पेंडिंग चारकोल इन पैलेडियम. आप पैलेडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, आप क्या करते हैं उसमें चारकोल डालते हैं. ठीक है, उससे आपका क्या होता है कि पैलेडियम क्लोराइड पैलेडियम मेटल में रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं उसको हाइड्रोजन आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप चारकोल ले रहे हैं, पैलेडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, उसको हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, आपको पैलेडियम क्लोराइड को पैलेडियम पे रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, एक तरह से. सो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए आप समटाइम्स क्या करते हो, आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हो. ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है फॉर्मिक एसिड, और आपका पैलेडियम क्लोराइड क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है टू पैलेडियम. सो पैलेडियम 2 इज गेटिंग रिड्यूस टू पैलेडियम 0 एंड फॉर्मल्डिहाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू मतलब आपका फॉर्मिक एसिड. तो आपका रिएक्शन में क्या होता है कुछ स्लाइड रेसिड्यू ऑफ फॉर्मिक एसिड या थोड़ा सा HCl आपका रह जाता है. ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो उसका मेटल पैलेडियम को आप क्या कर रहे हो प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो आपका रेसिडुअल HCl या फिर फॉर्मिक एसिड रह जाता है वो कभी कभी क्या करता है उन सेंसिटिव ग्रुप्स को क्लीव कर देता है. सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज टू नो. अगेन वही सिंपल चीज़ वही बताई हुई है कि हाउ टू रिड्यूस एल्कीन टू एल्केन्स. यहाँ पर आप इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने एडम्स कैटलिस्ट यूज़ किया विच इज़ प्लेटिनम ऑक्साइड. यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्लैटिनम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हो तो आपको कहता है प्लैटिनम ऑक्साइड सबसे पहले क्या यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो दिस इज रिड्यूस टू प्लैटिनम 0. यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. इट इज़ नॉट द ऑक्साइड विच इज़ द एक्चुअल रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, इट इज़ द प्लैटिनम विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान. प्लैटिनम 0 आपका जनरेट होता है. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कभी कभी इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे पूछ ली जा सकती है. ठीक है, एंड प्लैटिनम ऑक्साइड इज कॉल्ड एडम्स कैटलिस्ट. ओके, एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस दी डबल बॉन्ड टू गिव यू मेजर सिस एंड ट्रांस. जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन आपका जो है ना वो ऐड हो रही है ना
सिस मैनर, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट हमेशा सिस होगा जब भी आपका एडिशन हो रहा हो. सो दैट इज वाई व्हाट यू आर गेटिंग इज 82% सिस एंड 18% ट्रांस. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल करनी हो, आपका क्या है यहाँ पर, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ओलिफिन, H2PDC किया, रिड्यूस हो गया. ठीक है. अगर आपका ये वाला कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल है, अगर आपने सीरियम क्लोराइड यूज़ किया, दिस इज नथिंग बट अ लॉच रिडक्शन आपका यूजिंग NaBH4, तो आपका यहाँ पर क्या सीरियम क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है कार्बोनिल से, जिसकी वजह से आपका सिलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है कार्बोनिल का यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड. लेकिन अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो इसका रिडक्शन कर रहा है आपका डबल बॉन्ड का, क्योंकि ये क्या है कि कॉन्जुगेशन के अंदर है. ठीक है. जैसे ही आपका डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, आपको कार्बोनिल मिला, दिस इज द इंटरमीडिएट, और उसके बाद क्या कर रहा है, कार्बोनिल का रिडक्शन टू गिव यू दी एल्कोहल. ठीक है. ये हो रहा है आपका अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करेंगे. लेकिन अगर CCl3 यूज़ करेंगे तो आपको सिलेक्टिविटी मिल रही है. सो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन. ये भी कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या कार्बोनिल ग्रुप भी है और आपका डबल बॉन्ड भी है, और अंडर हाइड्रोजनेशन यूजिंग मेटल कैटलिस्ट केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है. व्हाट अबाउट बेंजीन रिंग्स. तो ये थोड़ा सा बेंजीन रिंग को देखिए यूज़ करने के लिए मोस्टली आप देखेंगे द यूज़ ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, लाइक रुदीनियम. तो इस तरह के आप देखेंगे उनको रिड्यूस करना, और आपको बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यूजली यूज़ करना पड़ता है, या फिर आइदर वन ऑफ देम. जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा ये एस्टर है, इसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया आपने निकल कैटलिस्ट में, एंड लुक एट दी लुक एट दी प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बट दे हैव बीन एबल टू डू इज कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग. सिमिलरली आपका ये वाला एसिड है, एरोमेटिक एसिड, इस कंडीशन में आपने क्या किया, हाइड्रोजन और प्लेटिनम ऑक्साइड एसिटिक एसिड एट 25 डिग्रीज. ऑल्दो ये कंडीशन इतनी हार्श नहीं, आई डोंट नो, दे हैव नॉट मेंशन द प्रेशर एट विच दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, बट using such catalyst you can reduce the aromatic ring. What about the reduction of alkynes to alkene? ये हमने एक्चुअली काफ़ी पढ़ा हुआ है, हम क्लास 12 से शायद पढ़ते आ रहे हैं, BSc से पढ़ते आ रहे हैं, दैट लिंडलार कैटलिस्ट. अगर आपको एल्काइन टू सिस एल्कीन में बनाना है, ठीक है, सो व्हाट डू वी यूज इज द लिंडलार कैटलिस्ट विच इज़ नथिंग बट पैलेडियम ऑन कार्बोनिल कैल्शियम क्लोराइड एंड लेड एसीटेट. यूजली पॉइजन करते हैं आप, लेड से पॉइजन करेंगे या क्विनोलिन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पैलेडियम की आपकी क्या होती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है. होता क्या है कि आपका क्विनोलिन हो गया, जैसे क्विनोलिन के ऊपर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन के नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैलेडियम से कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. इसी की वजह से जैसे ही आपका एल्कीन बनता है, उसका फर्दर रिडक्शन टू एल्केन नहीं होता जब भी आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और एल्काइन टू हमेशा हमें सिस एल्कीन मिलता है यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट. नाउ व्हाट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू aldehyde? So this is again a very well known reaction called Rosenmund reaction. Here what we use is the hydrogen of course and palladium on BSO4, which is BSO4 is nothing but a support. It is the support on which the reaction is carrying out. इसके अलावा आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड अगेन कार्बोनिल यहाँ पर क्या है कि आपका क्यूनोलिन इज एन एडिटिव इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ताकि आपका एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो. ठीक है. आपका एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो, और अंडर दीज कंडीशन दीज एरोमेटिक रिंग्स आर ऑल्सो नॉट रिड्यूस. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड, दैट इज रोजनमंड रिएक्शन. एंड व्हाट अबाउट द रिडक्टिव एमिनेशन? रिडक्टिव एमिनेशन हमने पता है कि जब भी आप प्राइमरी अमीन और कार्बोनिल लेंगे आप, ठीक है, प्राइमरी अमीन कार्बोनिल एल्डिहाइड हो सकता है, आपका कीटोन हो सकता है, अंडर स्लाइट एसिडिक कंडीशन आपका PTS हो सकता है, BF3 हो सकता है, व्हाट डू यू फॉर्म इज एन इमीन, और हम इमीन कैन बी इजीली रिड्यूस. आपको यहाँ पर आपको हाइड्रोजनेशन की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते थे, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते थे. ठीक है. वो भी आपको रिड्यूस कर देता है ये इमीन को इनटू एमीन. ठीक है. प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन. व्हाट अबाउट द नाइट्रो? नाइट्रो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नाइट्रो को रिड्यूस करना है टू एमीन, यूजली दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज़ यूजली आस्क्ड इन द इंडस्ट्रियल इंटरव्यू कि अगर आपको नाइट्रो टू एमीन रिड्यूस करना है तो आप कैसे करेंगे. 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं SnHCl, आयरन HCl, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको समझ आ जाएगा कि आपने इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया है अगर आप
SnHCl या Fe आयरन HCl बोलेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं वो रिएक्शंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्लज बनता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बहुत मैसी है. सो यूजली इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट और प्रेफरेबल मेथड टू कन्वर्ट नाइट्रो इनटू एमीन इज हाइड्रोजनेशन. और इससे भी एक स्टेप फर्दर जाऊंगा मैं, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस भी यूज़ नहीं कर रहे, आप अमोनियम फॉर्मेट यूज़ करते हैं और इन सीटू आप क्या कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, रीजन लाइक अमोनियम फॉर्मेट वो यूज़ करके. ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको पता होनी चाहिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो टू रिड्यूस नाइट्रो टू एमीन यू कैन यूज़ हाइड्रोजन, प्लेटिनम हो गया आपका, पैलेडियम हो गया. अगर डिपेंड करता है यहाँ पे आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि अगर आपका लेटर सपोज यहाँ ब्रोमो है और आप पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमो को भी आपको क्लीव कर देगा. सो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपको कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है, और बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल हैं. बट फिलहाल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नीड टू रिड्यूस नाइट्रो टू एमीन. यू कैन यूज़ द catalytic hydrogenation, okay, using ethanol, plus you can add slight bit of acetic acid as well. What about the hydrogenolysis? So hydrogenolysis, the word genolysis in itself means that you are breaking a bond. So here what we have is this particular nitrogen having two benzyl groups, right? और हमको पता है benzyl groups can be easily reduced using hydrogenation condition. अगर हमारा O benzyl होता, यहाँ पर हमारा क्या N benzyl है, तो आपने H2PDC यूज़ किया तो ये बेंजिल ग्रुप नाइट्रोजन के हैं, दोनों के दोनों आप रिड्यूस करके आपने एमीन बना दिया. उसके अलावा हमारा क्या है कि हाइड्रोजनेशन कंडीशन में व्हाट यू हैव इज दिस बेंजिलिक बेंजिलिक एल्कोक्साइड. अगर आपने इसको रिड्यूस किया तो बाय प्रोडक्ट आपका टॉल्विन प्लस आपका अल्कोहल बन जाएगा. सिमिलरली अगर आपका ये एमीन है उसको भी आप अगर करेंगे इस तरह से रिड्यूस करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ बेंजिलिक ग्रुप, राइट. और यहाँ पर भी हमारा क्या है कि दिस इज अ बेंजिलिक ग्रुप OBN, ठीक है. रिड्यूस करके हमारा एमीन बन गया, टॉलुइन इज द बाय प्रोडक्ट, यहाँ अल्कोहल बन गया, दिस इज द बाय प्रोडक्ट. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. So now we are going to talk about getting rid of the functional groups. Now let us suppose if we have an alkyne, ठीक है, इसके अंदर हम बुटाइल लिथियम अगर डालेंगे, हमें पता है कि एल्काइन का जो हाइड्रोजन है pretty acidic होता है. So what you end up getting is the formation of this organolithium reagent. अगर इसके अंदर कोई alkyl halide डालेंगे तो what you are doing is an alkylation. Then we can easily reduce this triple bond using hydrogenation. ठीक है, हाइड्रोजनेशन के अंदर आपका क्या, अगर आपको रिड्यूस करना है getting rid of this functional group, so what we are doing, we are basically getting rid of this triple bond and converting this into this single bond. So this can be done using hydrogenation. Let us suppose अगर हमको O tosyl group अगर यहाँ से रिमूव करना है तो we can use lithium ट्राईइथाइल बोरोहाइड्राइड इन THF. उससे क्या होगा कि आपका ये पूरा का पूरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा टोसाइल का. अगर हम यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि केवल यही रीजन से होगा, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है अदर पावरफुल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो वर्क टू. लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट पॉसिबल यूज़ कर रहे हैं लिथियम ट्राईइथाइल बोरोहाइड्राइड. ठीक है, व्हाट अबाउट कार्बोनिल? अगर हमको लेट अस सपोज इफ वी वांट टू गेट रिड ऑफ द कार्बोनिल, काफ़ी मेथड है. ठीक है, वन ऑफ द प्रेफर्ड मेथड इज यूजिंग रेनिनिकल. ठीक है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कार्बोनिल का हमने जैसे क्या किया, हमने सबसे पहले कार्बोनिल का रिएक्शन करवाया डाइथायोल के साथ यूजिंग लुइस एसिड. सो व्हाट वी हैव फॉर्म्ड इज काइंड ऑफ अ डाइथायो एसिटल्स. ठीक है, थायो एसिटल्स हमने बनाया, और जैसे ही हमने थायो एसिटल्स बनाया उसके अंदर रेनिनिकल डाला, हमको पता है यूजिंग रेनिनिकल वी कैन इजीली क्लीव कार्बन सल्फर बॉन्ड. सो दिस इज बेसिकली अ नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड द मोजिंगो रिएक्शन, जहाँ पर हम कार्बन सल्फर बॉन्ड को क्लीव करते हैं यूजिंग रेनिनिकल. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर टू मेथड्स. वन इज वुल्फ क्रिश्नर जहाँ पर हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजीन, एंड द अदर इज लाइक क्लेमेंजन रिडक्शन जहाँ पर हम जिंक HCl यूज़ करते हैं. सो बोथ दीज मेथड्स आर नॉट यूज इन द इंडस्ट्री. ठीक है, बट फिर भी from normal understanding of chemistry point of view you should be aware of these methods. अब ये वाला डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के ऊपर आई थिंक आई हैव मेड 3 वीडियोज़. ठीक है, वो इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप क्लिक करके तीनों देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने A to Z अबाउट डिसॉल्व मेटल रिडक्शन के बारे में कवर कर रखा है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर दे ऑल्सो टॉक अबाउट द डिसॉल्व मेटल रिडक्शन. नाउ अगर आप मान लीजिए कोई भी मेटल का रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ, जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम का कर रहे हैं HCl के साथ, व्हाट डू यू जनरेट इज व्हाट यू फॉर्मिंग इज मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम क्लोराइड, और HCl रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर. ये हो रहा है आपका सिंपल ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट यू फॉर्म इज अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन. अगर आप
इन अ वेरी वीक एसिड, मतलब समझ लो जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हो कभी कभी वाटर भी, अल्कोहल भी, और इवन आप अगर अमोनिया यूज़ कर रहे हो, हमको पता है कि अगर उस केस में मेटल यूज़ करें लाइक सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया जो कि बहुत रिएक्टिव है, और इवन लिथियम हो गया, सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडामाइड एंड वी जनरेट हाइड्रोजन. मतलब इवन विद वीक एसिड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर हम ना इसका कोई एडवांटेज यूज़ कर की तरह यूज़ कर सके? उससे पहले हम समझ लेते हैं हो क्या रहा है. वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इट इज़ बेसिकली अ 2-स्टेप प्रोसेस. ठीक है, पहले स्टेप में आपका क्या हो रहा है कि सबसे पहले नाइट्रोजन, सॉरी दिस सोडियम, लिथियम या फिर पोटेशियम, व्हाट इट इज गेट डूइंग इज इट इज रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कैप्चर्ड बाय व्हाटएवर सॉल्वेंट दैट यू आर यूजिंग. अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, अगर आप अगर आप अमोनिया के अंदर जैसे रिएक्शन यूज कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल में रिएक्शन कर रहे हैं, व्हाट इट डज, दिस इज पिक्ड अप बाय दिस सॉल्वेंट. सो व्हाट इट फॉर्म्स इज दिस कॉरस्पॉन्डिंग लेटर से एमाइड यहां बन गया एंड व्हाट जनरेट्स हाइड्रोजन. अब ये दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, एटम के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, टू इट जनरेट्स दी हाइड्रोजन गैस. तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, ये एन सोडियम आयन कन्वर्ट किया, सोडियम आयन कंबाइन हो गया एमाइड आयन के साथ टू फॉर्म सोडामाइड, और आपने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया. सो ये आपका 2-स्टेप रिएक्शन है. तो क्या कोई ऐसा तरीका है, इज देयर एनी मेथड? यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन वेस्ट ही हो रहा है. सो कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट है. कैन वी यूटिलाइज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, yes, and that is where the question of dissolved metal reduction comes into play. कि इससे पहले कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे, अगर मॉलिक्यूल में कोई, अगर हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसके अंदर लो लाइंग पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिसके मतलब लूमो काफ़ी लो है, तो आपका इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली जंप इनटू दोस ऑर्बिटल्स. ठीक है, और वो यूजुअली किस में होता है, जनरली कार्बोनिल में होता है, एल्काइंस में होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. ठीक है, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन ओनली वर्क इन केसेस वेयर द where you have low energy pi orbitals, or you, in other words you can say, जिसका LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, low laying होता है. ठीक है, that is the one of the biggest reason why dissolving metal reduction can reduce aromatic compounds over alkene. क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमारे बेंजीन हो गया, बेंजीन के जो हमारा लूमो होता है वो काफ़ी लोअर एनर्जी का होता है एज कंपेयर टू एल्कीन्स. ये भी एक क्वेश्चन है जो यूजुअली आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है. जैसे कि यहाँ पर वही बर्च रिडक्शन बहुत फेमस है. बर्च रिडक्शन तो आपने सबने पढ़ा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, बेंजीन को यूजिंग लिथियम अमोनिया इन इन इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट टू give you this this is not a conjugated diene, right? So this is the diene that you form. So this is the question that I'm asking, why the dissolving lithium reduces aromatic compound more easily than alkene. अब इसको एल्कीन को भी तो फर्दर रिड्यूस कर देना चाहिए था, but it does not reduce. और अगर आप नॉर्मल एल्कीन ले रहे हैं और आप बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, उसको भी रिड्यूस नहीं करेगा. तो मैंने जैसे आपको बोला, why it reduces benzene is because it has low laying pi orbitals. It means the LUMO, that is the lowest unoccupied molecular orbital of benzene, is of much lower energy as compared to the alkene. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि अब रिएक्शन में होता क्या है कि लिथियम क्विकली कन्वर्ट हो जाता है लिथियम आयन में, और व्हाट यू फॉर्म इज दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली सॉल्वेटेड बाय द एमोनिया. आप इसका देख सकते हैं. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी द ब्लू आयन. तो मतलब रिएक्शन में जैसे ही आपका ब्लू कलर बना, तो यू कैन ब्लू कलर का मतलब ही ये है कि आपका व्हाट यू हैव इज अ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. और ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, और जैसे ही आपका वो कलर डिसअपियर हो गया, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका अमोनिया से रिएक्ट होके एमाइड बना दिया है. सो कलरलेस होने का मतलब है कि वो आपका सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन डिसिपेट हो चुका है. ठीक है, उस केस के अंदर हमें अब क्या करना है, हमको इस तरह का सिस्टम लेना है या इस तरह का मॉलिक्यूल लेना है, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया. ठीक है, अगर हम उसके अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब बेंजीन अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो रादर देन ये होने के, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डायरेक्टली अटैक कर देगा बेंजीन को, बिकॉज इट वुड प्रेफर टू गो देयर रादर देन रिएक्टिंग विद द सॉल्वेंट.
जैसे कि ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका डिसॉल्व मेटल आयन है, ठीक है। अब इसके पास क्या है कि अब इसके पास रादर देन रिएक्टिंग विद द सॉल्वेंट इट कैन इजीली अटैक दी कार्बन, क्योंकि उसके आपका जो LUMO है वो काफ़ी लोअर एनर्जी का है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या वो ऐड हुआ, सो व्हाट यू फॉर्म इज दिस रेडिकल एनायन, और आपका जैसे ही रेडिकल एनायन बना, आपका जैसे ये हुआ, सो व्हाट यू हैव इज एन एथेनॉल इन द सिस्टम। सो नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से क्या किया, प्रोटॉन पिकअप कर लिया टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर अगेन रेडिकल। अब इस रेडिकल का आपका क्या है कि इस रेडिकल की स्टोरी है, अब ये रेडिकल फर्दर अब एक और इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, एडिशन होता है टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर एनायन। अब ये एनायन कैन गिव यू दिस कैन अंडरगो कॉन्जुगेशन टू गिव यू दिस पर्टिकुलर टू इंटरमीडिएट्स, और उसके अंदर आपका क्या होता है कि द मोस्ट स्टेबल इज दिस वन। और उसका रीज़न क्या है, ये मैंने अपना उन 3 वीडियोज़ के अंदर आपको क्लियरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वाई यू डू नॉट form this, why do you always end up getting the mostly measure is the unconjugated olefin. Now ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि when you have an electron withdrawing group using Birch reduction, this is the type of substitution pattern that you get, and when you have an electron donating group, this is the substitution pattern that you get. Okay, why is that? Again, I have covered everything in those 3 videos A to Z, probably the most important. You can see everything in the link उसका description के अंदर आप check कर सकते हैं, बहुत अच्छी videos हैं तीनों। वही बता रहे, स्टेबलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि when the electron is added up, you have a negative charge here, अगर इस पोजीशन पे होगा तो आपका बेटर स्टेबलाइजेशन हो रहा है। दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस इन बोथ द केसेस। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो बताया हुआ है उसने। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि जब आप रिएक्शन कर रहे हैं एनिसॉल का, ठीक है, आपका थोड़ा सा आपका मतलब अबाउट 20% कॉन्जुगेटेड आपका बनता ही बनता है, मतलब ये वाला, ठीक है, वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बनेगा ही बनेगा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो बोल रहा है कि अगर आपको कॉन्जुगेटेड चाहिए ही चाहिए, मतलब मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा यही वाला बने, ये वाला, ठीक है, अगर आप एनिसॉल यूज़ करें, एक चीज़ याद रखना, एनिसॉल, सो दिस इज एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल का आपने रिएक्शन किया, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बना, ठीक है, और आपका 20% आपका ये बना। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा इसमें आइसोमराइज हो जाए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एसिड डाल देना है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना है एज अ रिजल्ट ऑफ बर्च रिडक्शन, ये आइसोमराइज होकर आपको कॉन्जुगेटेड आपका डाइईन बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन अगर आप एनिलीन्स के साथ करते हैं, ठीक है, ये एनिलीन्स के साथ करते हैं, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू डू, आपको हमेशा कॉन्जुगेटेड वाला ही मिलता है। सो दिस इज नॉट सीन इन द केस ऑफ द एनिलीन्स, ठीक है। इट इज बीन इम्पॉसिबल टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर आइसोमराइजेशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर यू गाइस टू नो। उसके अलावा आपका क्या है कि बर्च रिडक्शन, जैसे कि एल्काइन का भी क्या है कि एल्काइन के भी जो LUMO है वो लो लेइंग है, तो उस केस में भी आपका क्या होता है कि एज सुन एज व्हाट यू हैव इज दिस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इट एड्स ऑन टू दिस ट्रिपल बॉन्ड, सो व्हाट यू हैव इज अ रेडिकल एनायन। और आपका रेडिकल एनायन ने क्या किया, ये वाले नेगेटिव चार्ज ने प्रोटॉन पिक किया आपका अमोनिया से टू फॉर्म दिस एमाइड। दूसरा रेडिकल जो है आपका, उससे फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन पिकअप करके कार्बेनियन बना दिया, ठीक है, टू फॉर्म दिस एनायन। अगेन इस कार्बेनियन ने आपका किया नाइट्रोजन से आपका जैसे अमोनिया से प्रोटॉन पिकअप करके टू गिव यू दी ओलिफिन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, हमेशा आपको ट्रांस प्रेफरेंस मिलता है। उसका रीज़न यही है, ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है और आपका जो ये आपका रेडिकल है और नेगेटिव चार्ज, दे प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। इमेजिन करो अगर ये रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज सेम साइड पर हो तो कितना रिपल्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है, इट विल मेक द मॉलिक्यूल फर्दर अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई व्हाट यू गेट इज द ट्रांस एज द मेजर इन दिस केस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। व्हाट अबाउट द सिलेक्टिविटी इन दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ सेलेक्टिविटी का इशू है क्या, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीमोसेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स
अगर हमको देखिए डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना है, जैसे कि अगर हमको उनको ऑक्सीडेशन करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, तो पर एसिड से ही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो आप डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं। आप ओजोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं उसका रिडक्टिव ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रल कंडीशन में कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है फर्दर। और अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का, यूजली आप क्या करते हैं, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं, या फिर आप सम हाइडर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप IBX की बात कर लेते हैं हम, या दूसरे रिएजेंट। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल को अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कीटोन में ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, सो दिस इज द जोन्स ऑक्सीडेशन, जिसमें आप क्या यूज़ करते हैं, क्रोमिक एसिड यूज़ करते हैं, पर फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। और कंडीशन देख सकते हैं आप, H2SO4 यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज आर वेरी हार्श कंडीशन, बहुत हार्श कंडीशन है, ठीक है। आप ऑक्सीडाइज तो कर लेंगे बट ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो अगर आपके कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो इसके अंदर आपके पूरी तरह से क्लीव हो जाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है आपका। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जैसे कि नॉन प्रोफिलेक्ट्रोजन ऑन ऑक्सीजन, ये क्रोमियम पर अटैक करता है। क्रोमियम इज ऑलरेडी इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका अल्कोहल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो इट मीन्स दिस रिएजेंट मस्ट बी गेटिंग रिड्यूस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका क्रोमियम 6 से आपका क्रोमियम 3 में जनरेट हो रहा है। तो अगर आपका जैसे ही रिएक्शन ग्रीन हो गया तो आप उसी से समझ सकते हैं कि आपका रिडक्शन हो चुका है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट क्रोमेट एस्टर दैट यू फॉर्म। उसके बाद आपका क्या होता है, दिस बॉन्ड कम्स हेयर, दिस एंटायर क्रोमेट रिएजेंट लीव्स, ओके, हैज क्रोमियम 4। ये फर्दर स्टेप में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये एसिड सेंसिटिव अल्कोहल के लिए ये मेथड वर्क अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं मॉलिक्यूल में तो उनको भी ये पूरा तरह से क्लीव कर देगा। What about oxidation of alcohols to aldehyde? यूजली आपने देखा होगा PCC इज प्रीटी प्रेफर्ड मेथड, pyridinium क्लोरोक्रोमेट या pyridinium डाइक्लोरोमेट, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब सवाल ये है आपका कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अगर आप PCC यूज़ कर रहे हैं, PDC यूज़ कर रहे हैं, जो यूजली क्या करते हैं, मॉलिकुलर शीव्स यूज़ करते हैं इस केस के अंदर, ठीक है, तो एब्जॉर्ब एनी वाटर। उसका रीज़न क्या है, देखो, अगर आप यूज़ कर रहे हो अल्कोहल, ठीक है, उसको आप एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहे हो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या है कि थोड़ा सा भी रिएक्शन में वाटर है, तो वाटर क्या करता है कि इट अटैक्स ऑन टू द एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बोनिल हमको पता है कि बहुत रिएक्टिव है। सो इट एड्स दिस वाटर एड्स ऑन टू द कार्बोनिल टू फॉर्म दिस हाइड्रेट, और ये हाइड्रेट क्या होता है कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो what is happening is basically what you end up getting is the formation of the alcohol into acid. एक्चुअली मेजर तो आपका एल्डिहाइड मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ एसिड भी मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट व्हाट यू वांट, राइट। सो इस वाटर को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा रिएक्शन में से, ताकि रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पर ही रुक जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, PCC यूज़ कर सकते हैं, PDC यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर शीव्स, ठीक है, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड स्टेज तक रुक जाए, ठीक है। अगर आप PCC यूज़ कर रहे हैं तो आप DCM में रिएक्शन कीजिए, एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप PDC यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग PDC इन DCM यू विल गेट एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप PDC यूज़ कर रहे हैं DMF, व्हाट यू विल गेट इज एन एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नाउ व्हाट अबाउट अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर आर अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक TPAP, NMO, ये यूज़ हुआ था। TPAP आपका क्या होता है कि TPAP इज़ नथिंग बट टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, विच इज़ अगेन अ मेटल दैट यू आर यूजिंग इज अ मेटल सॉल्ट, राइट। एंड NMO का आपका यूज़ क्या होता है कि NMO आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और TPAP क्योंकि आपका मेटल है, प्रेशियस सॉल्ट है, तो आप इसको कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उसको रीजनरेट कर सके रिएक्शन में। सो व्हाट इज हैपनिंग, NMO इज यूज्ड इन एक्सेस, सो NMO इज कन्वर्टिंग रुदीनियम 4 इंटू रुदीनियम 6, ठीक है। आपका रुदीनियम 7 जो आपका स्टार्टिंग मटीरियल है, मतलब रिएक्शन के एंड में आपको ये बन जाता है, ठीक है, पर रुदीनियम 5। सो NMO क्या करता है, NMO उसके साथ रिएक्ट करता है रुदीनियम से टू गिव यू N-methylmorpholine एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड इट जनरेट्स रुदीनियम 6। सो दैट इज हाउ द एंटायर कैटालिटिक साइकिल ऑफ दिस रिएक्शन इज कंटिन्यू। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिएजेंट। अगर आपके रिएक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं, जैसे कि व्हाट यू हैव इज OTHP विच इज एसिड सेंसिटिव, OTBDMS इज ऑल्सो sensitive to strong acids like H2SO4. So both these are tolerated, and alcohol is
selectively oxidize to aldehyde using these conditions. Here what we are talking about is another mild oxidizing agent. So these are come under the category of high valent iodine. So it means that the iodine here has a high oxidation state, right? Usually iodine की oxidation state हमने क्या देखी है, जैसे iodine की हम normal बात करते हैं, iodine 0 में होता है, potassium iodide बाकी सब जगह -1 है, but यहाँ oxidation state of iodine is 5, which is a very these are high valent iodine. So उसकी वजह से आपका क्या होता है कि sometimes reagents like IBX they have this explosive nature when they are really dry, ठीक है. Otherwise they are used in organic chemistry quite a lot. अगर हम बात करते हैं डेस्मार्टिन परआयोडिनेट की, तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसको बनाने का तरीका क्या है, और यहाँ पर द रीज़न वाई दे हैव मेंशन्ड दिस प्रोसेस इज बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम आयोडोबेंजोइक एसिड एंड यू कैन यूज KBRO3. So this is one of the old methods of preparing IVX via this method. Apart from that, a modified procedure involves the use of oxone as an oxidizing agent. So what you do is basically take this iodobenzoic acid, oxone in water and you heat it at around 70 degrees. ठीक है, आपका IVX बन जाता है और आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. अगर आपको IVX से डेस्मार्टिन परआयोडिनेट बनाना है जो कि ज़्यादा सिलेक्टिव है और मच बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू IVX, so you can basically treat this IBX with the acetic anhydride to give you the desmartin periodinane. Okay, दोनों के क्या बहुत सिलेक्टिव और माइल्ड रिएजेंट्स हैं टू ऑक्सीडाइज दिस अल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स. मतलब आपका सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन्स एंड प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स. ठीक है, अब एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का क्या है कि आइसोमराइजेशन भी नहीं हुआ. यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड है. अगर आप सोचें तो under other condition this might have isomerized to give you the trans, but here it gives you cis. So there is no isomerization that takes place. Apart from that there is one more method which uses Swan oxidation. ठीक है, यहाँ पे हम केवल अभी DMSO की बात करेंगे. There are other variants of this particular methods. So Swan oxidation is again one of the mildest oxidizing reagents. यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सिंपल reagents like DMSO जो कि एक सॉल्वेंट है, और आप ऑक्सिलाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, और रिएक्शन में ट्राइथैलामीन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसमें ट्राइथैलामीन यूज़ नहीं कर रहे, सो यू विल नॉट गेट दी aldehyde. What you will end up getting is a simple replacement of this OH with the chloro. ये चीज़ याद रखना, ठीक है. आपको बिना ट्राइथैलामीन के you will not get alcohol to aldehyde. और रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, सल्फर इज गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम +4 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडाइजेशन. ठीक है, इसका सल्फर का रिडक्शन हो रहा है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है. और इस रिएक्शन में ट्राइथैलामीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्वान ऑक्सीडेशन में. रिमेंबर दैट विदाउट ट्राइथैलामीन व्हाट यू विल गेट इज द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अल्काइल क्लोराइड स्पेसिफिकली. और जो लास्ट ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, ये दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वी आर यूजिंग द मैंगनीज सॉल्ट. सो वी कैन यूज द मैंगनीज ऑक्साइड इस ये करने के लिए. KMnO4 आपने बहुत ये नॉर्मल मेथड है जो कि आपने सुना होगा. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस चैप्टर सो फार. नाउ this is a very interesting thing, interesting concept now they are talking about. This is I feel is a very, very important, from exam point of view. So what you have is basically is an amino alcohol. और आप क्या कर रहे हैं, अमीनो अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ अंडर एसिडिक कंडीशन, सो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन अगर आप बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कर रहे हैं अंडर बेसिक कंडीशन यूजिंग ट्राइथैलामीन, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द नाइट्रोजन. मतलब एन बेंजोइलेशन हो रहा है. और अगर आप एसिडिक कंडीशन कर रहे हैं तो आपका ओ बेंजोइल डेरिवेटिव बन रहा है. ठीक है, ओ बेंजोइल. इंटरेस्टिंग है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसा हो रहा है, क्योंकि इस पे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अंडर दिस जो कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट है, दे आर ऑल्सो अंडर इक्विलिब्रियम. मतलब अगर आप इस इंटरमीडिएट को अगर आपके जहाँ पर आपका ओ बेंजोइल है, अगर आप उसको बेस से ट्रीट करेंगे इट विल गिव यू दी एन बेंजोइल, और अगर एन बेंजोइल को आप एसिड से ट्रीट करेंगे इट विल गिव यू दी ओ बेंजोइल. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर विच कंडीशन which of the product predominates. Let us suppose here what we have is a O benzoyl derivative. Under acidic condition what happens, आपका acidic condition में ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, आपका
प्रोटोनेट हो जाएगा, राइट। अगर ये नाइट्रोजन आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, दिस नाइट्रोजन डजंट हैव द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू अटैक द कार्बोनिल, सो इट मीन्स अंडर थर्मोडायनामिक कंडीशन, अंडर एसिडिक कंडीशन, दिस इज द थर्मोडायनामिकली मोर फेवर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अंडर बेसिक कंडीशन इट इज द एन बेंजोइल दैट इज फेवर्ड, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बेसिक कंडीशन यूज करेंगे तो नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन अंडर बेसिक कंडीशन आर अवेलेबल, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा टू गिव यू दिस इंटरमीडिएट, एंड दिस इंटरमीडिएट, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, दिस इज ओपनिंग अप टू गिव यू द एन बेंजोइल डेरिवेटिव। सो अंडर बेसिक कंडीशन इट इज N benzoyl which is predominating, whereas under acidic condition it is O benzoyl which is predominating, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एसिड डाल रहे हैं, एसिड डालने से क्या हो रहा है कि एसिड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करके टू गिव यू this is more stable. So under acidic condition this is thermodynamically more favored, whereas under basic condition this is thermodynamically more favored. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कि लेट अस सपोज अगर एक मॉलिक्यूल में हमारे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, ठीक है, एक है हमारा प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक है हमारा सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हम सिलेक्टिवली रिएक्शन कराना चाहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, तो हमको तो साफ पता है कि प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, राइट, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, ठीक है। और सेकेंडरी क्या है कि ज़्यादा हिंडर्ड है, लेस रिएक्टिव है। तो अगर हमको सिलेक्टिव एसाइलेशन करना हो सेकेंडरी पे तो हम कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें डालेंगे एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड डालने से क्या होगा, दोनों का एसिडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि प्राइमरी इज मोर अवेलेबल, ठीक है, प्राइमरी ओ एसिटाइल इज मोर अवेलेबल या लेस हिंडर्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी, तो अगर हम डी प्रोटेक्शन करेंगे इसका यूजिंग पोटेशियम कार्बोनेट मिथेनॉल, तो primary will be hydrolyzed faster as compared to the secondary. So this is one of the ways by which you can selectively carry out the O acylation of secondary in presence of the primary. तो आपने क्या किया, दोनों का acetylation कर दिया और primary को आपने selectively hydrolyze कर दिया in presence of secondary, ठीक है। So in this example, we are going to look at the chemoselectivity of the reaction of the dianions. For example, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, प्रोपर्जिल अल्कोहल लिया है, ठीक है। हमको पता है प्रोपर्जिल अल्कोहल के अंदर यहाँ पर एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन है। हमेशा डायनाइन केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी कार्बेनियन लास्ट में जनरेट होता है वही सबसे पहले रिएक्ट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होता है। इस वाले OH के इस हाइड्रोजन की pK क्या है, 16 है, इस हाइड्रोजन की pK क्या 25 है, मतलब कि ये लीस्ट एसिडिक है। जब आपने बेस का एक इक्विवेलेंट डाला तो आपका पहले ये वाला O- जनरेट हो गया, ये वाला प्रोटोन आपका एब्स्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा बेस का इक्विवेलेंट डालेंगे तो एल्काइन का प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हुआ। हमने बोला जो कि एनाइन लास्ट में फॉर्म होता है हमेशा रिएक्ट करता है फर्स्ट, और वैसे भी C- कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर रिएक्टिव देन और न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और जैसे ही आप इलेथाइल आयोडाइड इसके अंदर डालेंगे आप इसके अंदर, तो आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, विच ऑन क्वेंचिंग इट विल गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ लिंडार रिडक्शन का, टू गिव यू दी सिसजेस्मोन विच इज नथिंग बट एन फेरोमोन। क्योंकि यहाँ पर आपका एक तरह की सिलेक्टिविटी हो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड भी है, कार्बोनिल भी है, हमको पता है, लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू सिस एल्कीन्स, ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो हियर व्हाट यू हैव इज अ डाइएल्काइन, ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, द एनाइन दैट इज फॉर्म्ड लास्ट रिएक्ट्स फर्स्ट। आपने पहले दो इक्विवेलेंट डाले, दो इक्विवेलेंट जब डाले आपने, हमको पता है जो एल्काइन का ये हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों मोर एसिडिक हैं, दोनों एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फर्दर इक्विवेलेंट डालेंगे तो आपका ये वाला कार्बोनियन आपका वो होगा, डीप्रोटोनेट होगा। सो व्हाट यू हैव इज दिस ट्राई कार्बेनियन। अब हमको पता है दी कार्बेनियन विच इज़ फॉर्म जनरेटेड लास्ट इज मोर रिएक्टिव, और वैसे भी अगर लॉजिकली भी सोचें, सो दिस कार्बेनियन इज sp2 एंड दिस इज sp. sp2 is more reactive because this is less stable as compared to sp, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, सो दिस कैन स्टेबलाइज दिस नेगेटिव चार्ज स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कार्बन विच इज sp2। सो ये कार्बन क्या करता है, आपका इपॉक्साइड पे अटैक करता है, ओपन करके व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्कोहल। और अल्कोहल को क्या करता है, आप दो स्टेप के अंदर आयोडो में कन्वर्ट करते हैं, पहले टोसलेशन करते हैं और बाद में सोडियम आयोडाइड से आपका रिएक्शन करके। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेरोमोन, जो आप डायनाइन केमिस्ट्री का एडवांटेज लेकर आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट हम किस तरह से जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, उसको हम पहले रिएक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम प्रोटेक्टिव ग्रुप अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर हम जैसे कि इथाइल एसिड एसीटेट अगर लेंगे हम, ठीक है, तो हमें पता है कार्बोनिल क्या है कि हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एस्टर, ठीक है। उसका एक सिंपल रीज़न है कि एस्टर के अंदर क्या है कि एस्टर के ऑक्सीजन के विलड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये वाले कार्बोनिल के। तो अगर हम लेट अस सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें और हम चाहते हैं कि इसी पर रिएक्ट करे, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, जैसे कि उन्होंने देखा कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर ऐड करो तो ये सिलेक्टिवली इस वाले कार्बोनिल पे ऐड करके आपको ये प्रोडक्ट देगा इन 52% यील्ड। इसका मतलब रिमेनिंग 48% में कुछ यहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा होगा जो इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो अगर हम चाहते हैं सिलेक्टिवली यहाँ रिएक्शन हो, तो वट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, जिसके अंदर हम कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कार्बोनिल को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर? बाय फॉर्मिंग द कीटल, जिसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ कर रहे हैं अंडर एसिडिक कंडीशन टू फॉर्म द कीटल। और कीटल हमको पता स्पेसिफिकली क्या होता है, आपका कीटोन्स के लिए ही होता है, ठीक है। कीटोन का आपका प्रोटेक्शन हो गया। अब अगर आप ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो यहाँ पर तो कोई रिएक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। और हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड हमेशा एस्टर के ऊपर कभी भी कीटोन पे नहीं रुकता, हमेशा इट अटैक्स ऑन टू द एस्टर टू गिव यू द टर्शरी एल्कोहल। सो व्हाट यू फॉर्म इज अ टर्शरी एल्कोहल। और आपका जब रिएक्शन यहाँ हो चुका है, नाउ यू कैन रीजनरेट योर कार्बोनिल बाय क्लीविंग दिस दिस कीटल अंडर एसिडिक कंडीशन टू रीजनरेट द carbonate. So this is how you take advantage of protecting group approach to carry out the transformations that you want. So this is what we were talking about, acetal protection. इसका दूसरा नाम डाइऑक्सिलिन भी है, ठीक है, और दिस इज फॉर द कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर या अंडर बेसिक कंडीशन ही काफ़ी स्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली इसको अगर हम डीप्रोटेक्ट करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन, तो इसका मतलब ये अंडर एसिडिक कंडीशन दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। अब हम एक और उसकी बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि अगर हमको ये वाला कंपाउंड अगर हमको बनाना है, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा क्या कहेगा कि चलो लेट अस जनरेट दिस पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यू कैन नॉट फॉर्म अ ग्रिग्नार्ड विद अ कार्बोनिल कंपाउंड ऑन, यू जस्ट कैन नॉट, पॉसिबल ही नहीं है उसको वैसे करना ना, कि हम ऐसा सोचें कि ये ग्रिग्नार्ड यहाँ से हम जनरेट करेंगे और इस पे वो रिएक्ट करेगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड कैन रिएक्ट विद दिस इथाइल फॉर्मेट टू गिव यू दिस डिजायर कंपाउंड। जस्ट नॉट फिजिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसका तरीका क्या है, ठीक है? इसका तरीका ये है कि वी कैन स्टार्ट विद दिस कीटोन ब्रोमो कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या किया, कीटोन को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, अगेन एसिडल प्रोटेक्शन किया उसका। सो नाउ व्हाट यू हैव इज द एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड को हम मैग्नीशियम से अब हम ग्रिग्नार्ड जनरेट कर सकते हैं। अब जब हमने ग्रिग्नार्ड जनरेट किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस 2:1, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल फॉर्मेट टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और जैसे ही आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने रीजनरेट कर दिया अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव यू द डिजायर्ड कंपाउंड, ठीक है। See, the next example of protection, deprotection chemistry is the synthesis of this particular molecule on the top. Now, what they are saying is that if we have this ketone with the, alkyl bromide at the terminal position, let us suppose if we carry out the reduction of the carbonyl, okay, so what you will get is an alcohol and bromo. Now, to make this compound, if we try it with lithium acetylide, since it is so this is kind of a base, okay, right? So rather than undergoing an SN2 substitution, what it is going to do, it's going to abstract this hydrogen, so that there will be a deprotonation rather than the SN2 substitution. Now, so what can we do? So the first step that we can do after the reduction of ketone to alcohol, we can protect it as a TBS ether, tertiary dimethyl silyl group, okay. And now when we carry out the SN2 substitution, it works fine. And we know TBDMS ether, they can be easily deprotected using any fluoride salt. It could be tetrabutyl ammonium fluoride, and it could be hydrogen fluoride, or using all these fluorides, we can easily cleave it. And because what is the driving force for the reaction? I have already made a video on various protecting group for the alcohols. That is also there in the description. You can watch that. So the driving force for this particular reaction is the strong formation of bond between silicon and fluorine. बहुत strong bond होता है जो इस reaction को forward direction में करता है. So fluorine क्या करता है, silicon पर attack करता है, and this is released. So what you get is a generation of alcohol. Okay.
इसके अलावा देर आर सम एसिडिक कंडीशन एज वेल, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है अगर आपको एसिडिक कंडीशन में डी प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। मैकेनिज्म सेम है कि एसिडिक कंडीशन में पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, बाद में वाटर अटैक करता है इस पर सिलिकन पे, सो व्हाट यू रिलीज इज एन अल्कोहल। सो दिस इज सो द यू कैन हैव TBDM, यू कैन हैव TMS तो हमें पता है बहुत एसिड लेवाइल होते हैं। वी कैन हैव TBDMS विच इज ऑल्सो कॉल्ड TBS, वी कैन हैव TBDPS, वी कैन हैव टिप्स, अलग अलग तरह के। सो दे आर प्रीटी स्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन एंड बेसिस एंड माइल्ड एसिडिक कंडीशन, ओके, बट स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में दे कैन ऑल्सो बी क्लीव। So the other protecting group now we are going to talk about is THP, which is tetrahydropyran. So tetrahydropyran हमको पता है कि can be formed under acidic condition, at the same time can be cleaved under basic condition, acidic condition. So इसका मतलब अगर हम reaction में कहीं base use कर रहे हैं then we can use the THP as a protecting group, okay. So what we can do, let us suppose if we have this particular compound, if we treat it with dihydropyran, ठीक है, so under acidic condition what happens, what you form is the installation of this THP reaction. Now if we are carrying out using a reagent like lithium aluminum hydride, which is reducing agent, we can easily reduce this एस्टर, ठीक है, इनटू अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या होता है आपका, डाईहाइड्रोपायरन ये है। अब आप एसिडिक कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, डाईहाइड्रोपायरन के ऑक्सीजन के लोन पे रिफ्लेक्टेड इधर आ जाते हैं एंड एसिड प्रोटोनेशन हो जाता है। सो व्हाट यू जनरेट ना ऑक्सीनियम आयन, और जो भी आपका अल्कोहल है, जैसे कि इस केस में ये वाला अल्कोहल, ये क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है। व्हाट यू गेट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस THP ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम डाईहाइड्रोपायरन यू फॉर्म दी टेट्राहाइड्रोपायरन। सो जैसा कि मैंने बोला दे आर प्रीटी स्टेबल अंडर बेसिक कंडीशन। सो कोई भी हमें कोई भी बेस यूज़ करना हो तो वी कैन यूज़ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप, बट दे कैन बी मेड अंडर एसिडिक कंडीशन एंड दे कैन बी डी प्रोटेक्टेड अंडर एसिडिक कंडीशन। इनकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो जैसे कि ऊपर आप देख भी रहे पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम इसका दिखाया हुआ है किस तरह से होता है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली if we want to go from here to here, there are several steps. So what are the strategies that we need to adopt? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो OH है ये वाला, इसको इन्होंने क्या किया, सोडियम हाइड्राइड निकाल के बेंजिल ब्रोमाइड से वो किया है, रिएक्शन किया, तो मेक दी बेंजिल प्रोटेक्शन। अब इसी मॉलिक्यूल को देख के हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बता सकते हैं। अब बेंजिल प्रोटेक्शन तो हमको पता है हाइड्रोजनेशन के अंदर क्लीव की जा सकती है, और THP हमको पता है अंडर एसिडिक कंडीशन क्लीव किया जा सकती है, जिसके अंदर एसिडिक कंडीशन में बेंजिल को कुछ नहीं होता, ठीक है। So if we treat it under acidic condition, benzyl remains as such, THP is deprotected. अब हमने क्या किया, इसको several step में इन्होंने बताया नहीं है कि कैसे कन्वर्ट किया ब्रोमो में, लेकिन हम OH से डायरेक्टली ब्रोमो PBr3 यूज़ करके भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दे हैव सिंपली ट्रीटेड विद दी लिथियम एसिटाइलाइड। लिथियम एसिटाइलाइड बहुत स्टेबल है एक्चुअली, हमारा बेंजिल प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कुछ नहीं होता इसे। सो दे कैन ईजिली अंडरगो टू सब्स्टिट्यूशन टू गिव यू द डिजायर्ड कंपाउंड। अब यहाँ पर हम बेंजिल ईथर की बात कर रहे हैं। बेंजिल ईथर आर प्रीटी स्टेबल। इसको ब्रेक करने के लिए या तो हाइड्रोजनेशन कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, या तो हमें HBr यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ प्रीटी एसिडिक एक्चुअली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr, ठीक है। उसके अलावा हमारा अगर मिथाइल ईथर है, ठीक है, अगर हमारा फिनॉल्स हैं, हमको पता है इस तरह के मिथॉक्सी दे कैन बी ईजिली क्लीव्ड यूजिंग लुइस एसिड लाइक BBr3 हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन आइड हो गया, TMS आयोडाइड हो गया, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, TMS आयोडाइड का की रिएक्शन के अंदर एक्चुअली HI जनरेट होता है, और वो HI इज़ द वन विच कॉजेज द डिप्रोटेक्शन ऑफ मिथिल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है एक बेंजिल प्रोटेक्टेड अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोजनेशन किया इन्होंने, वही बताया कि अल्कोहल आपका जनरेट हो गया और हमारा टॉलरेंट बाय प्रोडक्ट होता है। अब दूसरा उन्होंने बताया HBr के अंदर ये कैसे होता है डी प्रोटेक्शन, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। HBr में आपका क्या हुआ कि पहले स्टेप में हमें पता ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट अटैक्स दी हाइड्रोजन, तो आपका प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। अब प्रोटोनेशन होने के बाद हमको पता है जो बेंजिलिक प्रोड्यूशन होती है ये बहुत ज़्यादा अंडरगोज फास्ट SN2 सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो ब्रोमाइड आयन होता है वो यहाँ अटैक करता है टू गिव यू दी बेंजिल ब्रोमाइड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड व्हाट यू जनरेट इज एन अल्कोहल। सो इस तरह के दो मैकेनिज्म है वाया विच द डी प्रोटेक्शन ऑफ बेंजिल ग्रुप टेक्स प्लेस। मिथॉक्सी ग्रुप के डी प्रोटेक्शन की जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, HBr के अंदर अगेन इसका प्रोटोनेशन हुआ आपका। अब हमारा ब्रोमाइड आयन हमें पता है यहाँ पे तो अटैक नहीं कर सकता हो, राइट। तो ब्रोमाइड क्या करता है, मिथाइल पर अटैक करता है एंड व्हाट यू जनरेट इज अ फिनॉल। सो दैट इज हाउ द यू कैन ईजिली डी प्रोटेक्ट दी मिथाइल ईथर
फिनॉल वाला. Here what we have here is an ester. सो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से उन्होंने ट्रीट किया, 5 इक्विवेलेंट लिए. 5 इक्विवेलेंट का उसका रीज़न ये है आपका कि देखिए एक वाला तो एक तरह से क्या है कि यहाँ पे व्हाट यू हैव इज एन एसिडिक ग्रुप OH के, NH वाला भी और OH, तो 3 के 3 तो क्या हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे जनरेशन ऑफ कार्बेनियन, क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ पर वो क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इन प्रोटॉन्स को टू जनरेट अ नेगेटिव चार्ज. लेकिन यहाँ एस्टर रिमेनिंग 2 इक्विवेलेंट क्या होते हैं, यहाँ पर ऐड होते हैं टू फॉर्म इंस्टॉल दी टू फिनाइल ग्रुप. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथोडोलॉजी है. और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मिथाइल को आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे आपने अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, ये भी प्रोटेक्टेड है आपका, फिनॉल पे कुछ होगा नहीं, ये भी आपका N बेंजल प्रोटेक्टेड है. तो आपने क्या किया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एस्टर को किया, 2 मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किए, टर्शियरी अल्कोहल बना, हाइड्रोजिनोलिसिस किया टू जनरेट द फ्री एमीन. दैट्स इट, ये हो गया आपका. और अब वो बात कर रहा है कि ग्लाइसिन के बारे में, अमीनो एसिड के प्रोटेक्शन के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अमीनो एसिड के प्रोटेक्शन उसने क्या किया, एसिड का इथॉक्सी प्रोटेक्शन किया, इथाइल प्रोटेक्शन. तो उसको करने के लिए उसने क्या किया, इथेनॉल अंडर एसिडिक कंडीशन उसने ट्रीट किया. जब इथेनॉल अंडर एसिडिक कंडीशन ट्रीट किया, व्हाट डू यू फॉर्म इज दी इथॉक्सी डेरिवेटिव, और HCl से आपने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन कर दिया. सो व्हाट डू यू फॉर्म इज द इथाइल एस्टर ग्लाइसिन का बना लिया उसका HCl सॉल्ट. अगेन ये बात कर रहे हैं अब इस केस के अंदर कि अगर हमको जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये बहुत ही शायद गेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था जहाँ पर पूछा गया था कि टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर जो होता है ना प्रोटेक्शन, हम एसिड का कई बार करते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर एस्टर का प्रोटेक्शन, लेटर से अगर आप इथाइल एस्टर ले लें, कुछ सर्टन रिएक्शंस में क्या होता है, इथाइल एस्टर बहुत रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप उनका टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर प्रोटेक्शन कर देंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल वो हो जाती है. मतलब अब ये एस्टर कितने, क्योंकि इनका टर्शियरी ब्यूटाइल का बल कितना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर रिएक्शन होता ही नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर. अब इसको बनाने का हमारा तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका 2 है. अगर हमको इंस्टॉल कैसे करें, एसिड का रिएक्शन हम आइसोब्यूटिलीन के साथ करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन. उसका रिएक्शन कैसे होता है, आइसोब्यूटिलीन क्या होता है अंडर एसिडिक कंडीशन, ये बनता है, व्हाट यू जनरेट इज दिस कार्बोकैटायन. और जैसे ही आपका एक कार्बोकैटायन बनता है, इस तरह से आपका ऑक्सीजन इस पर रिएक्ट करके टू गिव यू द टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर. और इसको क्लीव करने के लिए व्हाट यू यूज इज द स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन. यूजली इसके लिए क्लीव करने के लिए हमको TFA यूज़ करना पड़ता है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, और उसका क्या होता है कि अगर जब आप TFA यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन एसिड पर रिएक्ट करता है एंड व्हाट यू हैव इज ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है. सो व्हाट यू जनरेट इज दिस पर्टिकुलर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के अब अलग अलग, अगर इवन एलिमिनेशन होगा तो इट विल गिव आइसोब्यूटिलीन एज अ गैस. अगर आपका रिएक्शन किसी सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहलिक सॉल्वेंट में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस पर रिएक्ट करके इट कैन गिव यू टर्शियरी अल्कोहल्स टाइप ऑफ कंपाउंड. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, इन दोनों मैकेनिस्टिक पाथवे से हमारे ये बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको क्लीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक TFA भी यूज़ होता है, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हम लैब के अंदर इसको HCl से भी हम क्लीव करते हैं. बट आपके लिए जस्ट फॉर द क्लेडन, जस्ट रिमेंबर यू आर, आपके लिए TFA ही वो है. ठीक है, TFA हो गया, H2SO4 हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि इसे ईजिली क्लीव कर सकते हैं. अभी एमिनो एसिड की मैंने केमिस्ट्री की पूरी बात करी हुई, इनके प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन. यहाँ पे हम CBC प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया, हमारा ये एमिनो एसिड लिया है, उसको हमने फिर क्या किया, हमें बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, CBC प्रोटेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को, ये वाला कार्बोनिल, ये ऑक्सीजन, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम CBC कहते हैं. अंडर बेसिडिक कंडीशन जब हम ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, आपका एमीन इससे रिएक्ट करता है एंड दिस एंटायर पार्ट, ठीक है, ये एंटायर फ्रेगमेंट को हम CBC कहते हैं. ठीक है, तो एक तरह से हमने अमीन का प्रोटेक्शन कर लिया. अब CBC को डीप्रोटेक्ट करने के हमारे तरीके 2 हैं. या तो हम हाइड्रोजनेशन यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन में पता है कि हमारा हाइड्रोजनेशन यहाँ से उसको क्लीव करेगा, या तो फिर हम HBr भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दोनों के मैकेनिस्टिक पाथवे अलग अलग है, हम देख लेते हैं. जैसे अगर आप HBr यूज़ करेंगे तो हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन एसिड पर रिएक्ट करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू फॉर्म. अगेन सेम फंडा है,
क्योंकि ये वाला हमारी बेंजिलिक पोजीशन काफ़ी रिएक्टिव है, तो ब्रोमो आयन यहाँ क्या करता है, ब्रोमाइड आयन रिएक्ट करता है बिकॉज इज अ बेंजिलिक पोजीशन, और रिएक्ट करने के बाद व्हाट डू यू फॉर्म इज अ बेंजिल ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है, कार्बमिक एसिड कहते हैं शायद इसे, ठीक है। कार्बमिक एसिड क्या होता है, इसके अंडर अंडरगोस डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद व्हाट इट गिव्स इज द एमीन। और सेम ही चीज़ आपकी हाइड्रोजनेशन में होती है। हाइड्रोजनेशन के अंदर जैसे ही आप करते हैं व्हाट यू इट, वो यहाँ से क्लीव करके आपका अगेन टोलुइन जनरेट करता है, ये कार्बमिक एसिड जनरेट करता है विच अंडरगोस डी कार्बोक्सिलेशन टू गिव यू द डिजायर्ड एमीन, ठीक है। सो इस तरह से हम CBG ग्रुप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, CBG ग्रुप बहुत इफेक्टिव होता है, इसका काफ़ी स्टेबल होता है अंडर बेसिक कंडीशन। तो मोस्टली जब आप बेसिक बेसिस यूज़ कर रहे हैं तब आप ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं CBG ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया है कि हमारा अल्कोहल लिया है और ये हमारा क्या है, CBG प्रोटेक्टेड एसिड है। अब एसिडिक कंडीशन में हम क्लियरली समझ सकते हैं व्हाट दे आर फॉर्मिंग इज दिस पर्टिकुलर एस्टर, ये वाला OH और ये एसिड कंबाइन होकर ये एस्टर बन रहा है। एंड नाउ व्हाट दे आर कैरिंग आउट इज बेसिकली ये एमाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव इज दिस एंटायर एस्टर, यहाँ पर क्या है कि नाइट्रो ग्रुप है। सो नाइट्रो ग्रुप इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो क्या कर रहा है, इस कार्बोनिल को, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। सो अंडर बेसिक कंडीशन व्हाट हैपेंस, बेसिक कंडीशन में आपने ये अमीन फ्री कर दिया, ये अमीन इस पर रिएक्ट करके व्हाट यू आर फॉर्मिंग इज दिस एमाइड बॉन्ड। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स, यहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं। और दूसरे मेथड में व्हाट यू हैव इज एन एस्पार्टिक एसिड, यू आर ट्रीटिंग इट विद अ बेंजोक्सी कार्बोमिल क्लोराइड टू इंट्रोड्यूस दी CBG ग्रुप, ठीक है। बेसिक कंडीशन के अंदर हमारा NH को CBG प्रोटेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों के दोनों एसिड्स को उन्होंने क्या किया, बेंजिल प्रोटेक्शन कर लिया, ठीक है। इसका बेंजिल फिनॉल आपका बेंजाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट कर रिएक्शन किया, तो आपका क्या बन गया, इनका एसिड का एस्टर बन गया, बेंजिल एस्टर। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सिलेक्टिवली लिथियम हाइड्रोक्साइड से वन ऑफ दी एस्टर्स को इन्होंने एसिड के अंदर कन्वर्ट किया। तो आपका ये वाला जो एस्टर है दैट इज सिलेक्टिवली गेटिंग हाइड्रोलाइज टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वही स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि ये इस वाले पोजीशन पे एस्टर बनाने के लिए इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। सो यू हैव दिस एसिड और यहाँ पर दिस इज द ट्राईफ्लोरोफिनॉल से आप ट्रीट कर रहे हैं। अब ट्राईफ्लोरोफिनॉल से ट्रीट करने का बड़ी फॉर्म इज दिस एस्टर। अब तीनों के तीनों क्लोरो इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और ये वाला कार्बन बहुत रिएक्टिव होगा। सेम बेस से आपने ट्रीट किया, बेस के अंडर बेसिक कंडीशन, यहाँ पे आपका एमीन फ्री हो गया, उसने यहाँ पे रिएक्शन किया टू फॉर्म दी एमाइड बॉन्ड। अब जब आपका एमाइड बॉन्ड बन गया, अब आपने क्या किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को आपने क्लीव करना है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, यहाँ बेंजिल है या CBG है, दोनों के दोनों हाइड्रोजनेशन कंडीशन में हम आराम से उड़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों को हमने क्या किया, क्लीव कर दिया अंडर हाइड्रोजनेशन कंडीशन टू गिव द डिजायर्ड कंपाउंड। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन केमिस्ट्री है। And here what we are going to talk about is a very basic protecting group which is the Bock protection for the amines, ठीक है। Bock protection हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है अंडर बेसिक कंडीशन, बट अंडर एसिडिक कंडीशन दे कैन बी इजीली क्लीव्ड। तो यूजली अमीन के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका डी प्रोटेक्शन का अगेन सेम मैकेनिज्म है, जैसे ही आप एसिडिक कंडीशन लेंगे व्हाट यू हैव इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन विद द एसिड, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव होता है, व्हाट यू जनरेट टर्शियोब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है, जो कि अंडरगोस इवन एलिमिनेशन टू गिव यू आइसोब्यूटिलीन गैस CO2। और जो आपका कार्बोमिक एसिड जनरेट होता है इट अंडरगोस डीज कार्बोक्सिलेशन टू गिव यू दी एमीन। सो बॉक ग्रुप आपका बहुत यूजफुल होता है अगर आप रिएक्शन सीक्वेंस में कहीं भी बेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अंडर बेसिक कंडीशन बॉक इज प्रीटी स्टेबल, बट अगर अंडर एसिडिक कंडीशन दिस कैन बी इजीली क्लीव, ठीक है। तो इस वाली पूरी की पूरी जो पार्ट है इसको हम बॉक कहते हैं। इसके अलावा एक्चुअली हमारा क्या है कि यहाँ पर हम ये वाला FMOC ग्रुप है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये क्या कह रहा है ऊपर अगेन सेम, कुछ ज़्यादा वो नहीं अलग नहीं बोल रहा। अगेन यहाँ क्या कर रहा है, एसिड को फिनॉल से ट्रीट करके क्या कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। ये वाला क्या है कि इसको एक्टिवेट करने का अगर हम किसी भी अमीन से ट्रीट करेंगे तो हम इजीली एमाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ एमाइड बॉन्ड फॉर्म किया, इसमें HCl डाला, हमको पता है इस पूरे के अंदर HCl में इजीली हम बॉक को डिप्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उसने अमीन जनरेट किया। अब अमीन जनरेट करने के बाद अगेन वो ये वाला हमारा कंपाउंड डाल रहा है जिसके अंदर हमारा अगेन एक एक्टिवेटेड हमारा एस्टर है, ठीक है।
ये वाले अमीन ने इस एक्टिवेटेड एस्टर से अटैक किया, तो वी फॉर्म इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन पेप्टाइड। अगेन HCl डाला तो बैक डिप्रोटेक्ट हुआ, और उसके अंदर हमने अमीन डाला तो क्या किया उसने, ठीक है, उसके अंदर हमने अमीन डाला तो अमीन ने यहाँ रिएक्ट करके टू फॉर्म द डिजायर्ड कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एक FMOC भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, यूजली दिस इतना प्रेफर नहीं किया जाता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर दी एमीन्स। अब हमारा क्या है कि जब यहाँ पे हम इसको ट्रीट करते हैं, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा FMOC है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम FMOC का डीप्रोटेक्शन करते हैं, FMOC का डीप्रोटेक्शन हम पाइप्रिडीन बेस से यूज़ कर सकते हैं, आराम से हो जाता है। और जो उसका डीप्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है वो फॉलो करते हैं E1CB, क्योंकि मुझे याद है एक बार एक एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था, ठीक है। सो व्हाट दिस इज दी FMOC प्रोटेक्टेड एमीन, ठीक है, ये वाला हमारा एमिनो एसिड हो गया, ये FMOC प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। जब आप इसके अंदर ट्राइथैलेमीन डालते हैं, ठीक है, ट्राइथैलेमीन डालने का जैसे ही ये हमारा क्या होता है, यहाँ से एनायन कार्बोनियन एब्स्ट्रैक्ट होता है, इट कम्स बैक टू जनरेट दिस पर्टिकुलर अगेन ये वाला इंटरमीडिएट विच अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव यू द अमीन। अब इसकी वो क्या बोल रहा है, इसकी खासियत क्या है, ठीक है, यहाँ पर कार्बोनियन जनरेट क्यों हो जाता है इतना इजीली यूजिंग इवन वेरी सिंपल, इतना ज़्यादा बेसिक अमीन भी नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि व्हाट यू जनरेट इज अ 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच इज एरोमेटिक इन नेचर, सो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस एंटायर डीप्रोटेक्शन स्टेप्स। उसके अलावा ये पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने नट शेल के अंदर सारा का सारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप, डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप, कौन सी कंडीशन के अंदर किसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और किससे वो प्रोटेक्ट, किससे मतलब है ना, कौन कौन सा हम रिएक्शन सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, और ये है मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और डीप्रोटेक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।